Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संडे के दिन आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? कल्पेश जी, धनंजय, हर्ष, नागेश जी, गौतम जी, स्वाति मैडम, सुप्रभात सर। सुप्रभात। मॉर्निंग सर। कल्पेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अब मार्केट में तो फॉल चल रहा है। क्या फॉल चल रहा है? अब जब भी वॉर का सिचुएशन होता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वॉर के 4 फेज होते हैं। एक तो पैनिक सेलिंग होती है, जो अभी चल रहा है पैनिक सेलिंग। दूसरा है कि जो स्मार्ट मनी है वो मूव करती है, मतलब बॉन्ड में, गोल्ड में, जो सेफ एसेट क्लास है उसमें लोग पैसे अपने इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। और चौथा स्टेज है जहां पे स्टेबिलिटी आएगी और रिकवरी आती है। 4 फेज है मार्केट के। जब भी पैनिक होती है उस चीज की बात कर रहा हूं मैं।
अभी ये पैनिक सिचुएशन चल रहा है और जहां पे स्मार्ट मनी मूव कर रही है वैसा सिचुएशन चल रहा है। उसके बाद इन्फ्लेशन आएगा। देखो सेकंड फेज है ना, सबसे खतरनाक फेज होता है। सबसे पहले पैनिक चल रहा है। पैनिक क्या चल रहा है कि लोग फियर में माल बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं। दूसरा आता है कि जब ऑयल के प्राइसेस बढ़े रहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट इंपैक्ट होगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़े रहेंगे, लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी, रिसेशन और डिप्रेशन का एक माहौल बन सकता है। कि अगर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती, अगर वो मनी सप्लाई वो बढ़ा देती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पैसे की वैल्यू वैल्यू कम हो जाएगी। तो उनको वो भी मैनेज करना और ग्रोथ भी मैनेज करना है। वो दोनों मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। कि पैसे की सप्लाई कर दें, पहले से इन्फ्लेशन चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए, चीजों के भाव बढ़े हुए, और पैसा दे दिया और भाव बढ़ जाएगा। भाव बढ़ना का मतलब क्या? अब ये सोचो, किसी का अगर पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है और अगर वो रिटर्न, क्योंकि मार्केट तो गिरा हुआ है, अगर वो गोल्ड में पैसा डालता है, बॉन्ड्स में डालता है, तो बॉन्ड का जो रिटर्न है, मैं ऐसी कंट्री की बात कर रहा हूं जहां पे बॉन्ड के रिटर्न अप्रोक्स 2-3% चलते हैं। जैसे यूएस की बात है, इंडिया में बॉन्ड के जो रिटर्न है 6.5-7% चलता है। अगर इन्फ्लेशन 8-10% हो गया, तो ये सोचना किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड में, एक फिक्स एसेट में, क्योंकि उनको रिस्क नहीं चाहिए। क्योंकि बाजार में क्या चल रहा है, बाजार में एक फियर का माहौल चल रहा है। यहां पे ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पैसे ही ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट किया जहां पे सेफ रहे, और कॉस्ट ऑफ मनी भी इंपैक्ट ना हो। कॉस्ट ऑफ मनी मतलब अगर 1 साल में 1 करोड़ रुपया इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा तो और फियरफुल रहेंगे। अमेरिका में 1970 में ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए जो इन्फ्लेशन को बीट करे। वहां पे 11-11, 12-12% इन्फ्लेशन चल रहा था। 11-11, 12-12%। कभी आप पढ़ना यूएस की कहानी की, इन्फ्लेशन को, सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करे वो, ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट बनाए, मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट बनाए। क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा था कोई भी प्रोडक्ट, मार्केट की हालत खराब चल रही थी। तो जब ऐसा हो जाता है ना कि इन्फ्लेशन बीट नहीं होगा, तो जो सेकेंड फेज है वो बहुत बहुत डेंजर हो जाता है। थर्ड फेज है जहां पे लोग गोल्ड में, बॉन्ड में, ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। चौथा फेज है जहां रिकवरी आ जाएगी, जहां पे मार्केट स्टेबल हो जाएगा, और फिर लोग सेफ एसेट क्लास से, गोल्ड से, बॉन्ड से पैसा निकालेंगे और वापस इक्विटी में पुश करेंगे, क्योंकि इक्विटी की वैल्यूएशन उनको एक सही वैल्यूएशन दिखने लगती है कि हाँ अब मार्केट यहां से रिकवर हो जाएगा। अब ये 4 फेज होते हैं। अभी का जो फेज चल रहा है, अभी का ये वॉर का, ये फर्स्ट और सेकंड फेज के इन बिटवीन चल रहा है। फर्स्ट फेज हो गया, पैनिक सेलिंग आ रही थी, है ना। अब ये एक एक हफ्ते से ज्यादा हो गया लड़ाई को। अब मार्केट स्टेबल तो मैं नहीं कहूंगा, मगर एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट में अभी भी। मगर अभी सेकंड इंपैक्ट आएगा, जैसे ऑयल सप्लाई क्या हो रही है, इंपैक्ट हो रही है ना। अभी ऑयल से, देखिए मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, इंडिया छोटी मोटी कंट्री नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात क्या कह रहा हूँ? अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार इंडिया का नाम लेते हैं और श्रीलंका का नाम लेते हुए दिखा आपको कभी हो? डोनाल्ड ट्रंप नेपाल का नाम देते हुए दिखे हो? चाइना, इंडिया, है ना। तो छोटी मोटी कंट्री नहीं है। अब मैं बात करूं कि ऑयल कंजम्पशन की, अगर ऑयल कंजम्पशन की बात करूं तो इंडिया का कौन सा रैंक है पता है आप लोगों को? सेकंड। नहीं, ग्लोबल ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन की, ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन की। देखिए ग्रोथ रेट कैसे पता चलती है कि कंट्री इज ग्रोइंग? हेलो, पता है आपको? एक बार उन्होंने डिस्कस किया था बहुत, याद है? सर बहुत पहले दिन किए थे लेकिन याद नहीं आ रहा है। हाँ, और कोई याद है? गौतम जी, नागेश जी, राहुल भाई, याद है आपको? बीच में उन्होंने किया था। मैं कह रहा हूं मैं ग्रो कर रहा हूं एज ए इंडिविजुअल लेवल पे, तो क्या क्या चीजें दिखेंगी? कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना। गाड़ी आ गई। हाँ, फ्लैट बैंक लिया। बैलेंस में बढ़ेगा, है ना, पैसे हाँ। बढ़ेंगे, मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा।
अब मैं कहूं कंट्री में अगर ऑयल का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो क्या मैं इसको ग्रोथ मानूं, गौतम जी, कल्पेश जी? ऑयल का कंजम्पशन, देखिए, लोग जीडीपी डेटा ऐसे भी देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन 7.5% सीजीआर से बढ़ रहा है, हर साल 7.5% इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जीडीपी ग्रोथ रेट भी 7.5-8% में बढ़ रही है, मतलब ये स्टेबल ग्रोथ वैसा है ना? कि हाँ, दोनों चीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। समझे मेरी बात? ऑयल का कंजम्पशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन बढ़ेगा, सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ेगा, स्टील का कंजम्पशन बढ़ेगा, सेवन व्हील ऑफ इकोनॉमी ऐसे कहे जाते हैं, कोल का कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर ये सबका कंजम्पशन बढ़ेगा, इसका मतलब इकोनॉमी एक सही राह पे चल रही है। अब पूरी दुनिया में मैं बात करूं तो भारत थर्ड रैंक पे आता है ऑयल कंजम्पशन में। किस पे आता है? है। थर्ड रैंक पे। अब देखना, फर्स्ट पे यूएसए है और सेकंड पे चाइना है ना? ये मिलियन बैरल पर डे, 19 मिलियन बैरल पर डे यूएस का कंजम्पशन है, चाइना का 16 और इंडिया का 5.6 है अप्रोक्स। ये दोनों से बहुत कम है, हाँ, मगर हम लोग थर्ड पे हैं। ठीक है, रशिया जापान ये सब का हम हमसे कम है, मतलब वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसका देखो, टोटल 3 कंट्री है, सिर्फ 3 कंट्री है जो 40% ऑयल कंज्यूम करती है पूरी दुनिया का। तो इंडिया एक बड़ा प्लेयर है ऑयल कंजम्पशन में, समझ रहे आप? अब मैं ये देखूं कि ये फॉल तो हुआ बाजार में, अभी फॉल चल भी रहा है, तो इस फॉल में कोई कोई ऐसे भी तो स्टॉक्स होंगे जिनका लेना देना नहीं है, जिनका लेना देना नहीं है इस बाजार से, मतलब ये वॉर से, पर फिर भी इंपैक्टेड है वो। अभी आईटी की हम लोग हालत देखें तो आईटी की तो हालत पहले ही खराब थी, गिरा हुआ है। कुछ कुछ स्टॉक है जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है कि वॉर होगा, डिफेंस के प्रोडक्ट बिकेंगे, डिफेंस को ऑर्डर मिलेगा, जो कंट्री है वो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, अपना रिसर्च डेवलपमेंट का काम होगा, बाय डिफॉल्ट इस इंडस्ट्री हम लोग देखेंगे तो एक डिमांड रहेगी, एक ग्रोथ मिलेगा, बाय डिफॉल्ट है। पर कुछ जिनमें एफएमसीजी कोई लेना देना नहीं है, जो जो खाते पीते हैं वही खाते पीते रहेंगे, मोस्ट ऑफ, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता, चेंजेस नहीं होते। बैंक्स इनिशियली कुछ गड़बड़ नहीं होता, इनिशियली अगर चीजें एक्सटेंड होती हैं तो होगा। अब अगर डॉलर $90 पर बैरल, $120 पर बैरल बढ़ जाएगा, तो हम लोग को इंडियन इकोनॉमी पे इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऑयल इंपोर्टेड कंट्री, 80% लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा लग रहा है, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका कम पैसा लग रहा है, तो जो शॉर्टफॉल आएगा इसमें, तो कंट्री के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, नेगेटिव बैलेंस रहेगा उनका, नेट डेबिट रहेगा, तो ये इंपैक्ट आएगा। जो पहले सस्ते मिल रहा था वो महंगे मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर बना रहेगा। अब यहां पे फियर थोड़ा सा ये भी है कि अगर ऐसे ही वॉर अगर एक्सटेंड होता रहा तो सप्लाई चेन इंपैक्ट होगी। सप्लाई चेन इंपैक्ट होगी मतलब क्या? कि आप ये सोचो, सिर्फ ये ऑयल की बात नहीं है, ये और भी नेसेसरी प्रोडक्ट की बात है, कि हर कंट्री किसी ना किसी कंट्री के साथ ट्रेड में है, सब कुछ इंपैक्ट होगा। ऑयल तो प्राइमरी है, मगर बाकी भी तो चीजें हैं, कपड़ा हो गया, दवाइयां हो गई, नेसेसरी चीजें हैं, वो भी इंपैक्ट होंगी। तो इसका जो असर है ये पूरे इकोनॉमी पे रहेगा। मगर इस फॉल में बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं जो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, डिस्कस करेंगे। अब मुझे 3 सेक्टर एक बढ़िया सेक्टर लगते हैं। सबसे पहले मुझे स्टील अच्छा लगता है, ऑटो अच्छा लगता है, और बैंक्स अच्छा लगता है, पीएसयू बैंक्स। अभी जिसमें एक है टाटा स्टील,
क्यों? टाटा स्टील स्टॉक का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25 और वैल्यूएशन है 2,47,000 करोड़। अब मैं यहाँ पे देखूं ना तो जो इसका पी है वो लास्ट 5 साल का पी क्या था, एक टाइम पे यहाँ पहुंच गया था। अब पी रेशो इसका चल रहा है 20। देखो धीरे धीरे, पहले 45 था, अब ये आ गया 27। डिविडेंड यील्ड, स्टॉक का जो ग्रोथ रेट है वो है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो कंपनी नेट प्रॉफिट ठीक ठाक रिपोर्ट कर रही है अभी, है ना। 9,000 करोड़ का, पहले 3,000 करोड़ का था, 4,900 करोड़ का नुकसान था, ठीक है। और अभी प्रॉफिट ठीक ठाक रिपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग। अभी कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 9% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का है। अच्छी चीज है। अब ये सब चीजें मैं कंपेयर करूं तो जो प्रॉफिट कर रही है कंपनी, 25 का पी डिमांड कर रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब जो कंपनी है देखो 38 का पी है ना। ये पैसा ज्यादा डिमांड कर रही है, रिटर्न्स कम देंगी हम। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करूं मैं तो नेट प्रॉफिट देखो 7,700 करोड़ है। वही है जिंदाल स्टील, 42 का पी डिमांड कर रही है ना। मतलब पैसा ज्यादा मांग रही है मेरे से, मगर जो नेट प्रॉफिट है वो कम रिपोर्ट कर रही है। नेट प्रॉफिट देखो सिर्फ 189 करोड़ का, यहाँ पे देखो 3,400 करोड़ का। तो ये टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी लग रही है जो सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जो इंडस्ट्री पी है, ये देखो इंडस्ट्री पी कितने का है, इंडस्ट्री पी है 20 का और वो मुझे 25 पे मिल रही है। और परफॉर्मेंस की बात करो तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुझे टेक्निकल चार्ट से भी बेहतर लगती है। इस तरह से ग्रोइंग है। मुझे जो टारगेट लगता है नियर टर्म में, वो लगता है 280 रुपया आने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। अगर 2027 तक मैं देखूं तो यहाँ से अप्रोक्स 40% का ये रिटर्न दे सकती है, 40% का। तो मुझे ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगती है इस फॉल में। अगर मैं एसएल देखूं तो 182 के नीचे है यहाँ पे कहीं। अब यहाँ पे देखिए एक सिर्फ चीजें क्या चल रही है कि जो ऑयल सप्लाई जो इम्पैक्ट हो रही है, तो कोल की भी सप्लाई इम्पैक्ट हुई है। और कोल की सप्लाई इम्पैक्ट हुई है तो कोल यूज होता है मोस्ट ऑफ स्टील में। तो इनका जो इनिशियल मार्जिन है वो बढ़ सकता है ना। जो इनका मार्जिन मतलब कम हो सकता है। अगर मार्जिन कम हो सकता है तो अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अगर ये इंडस्ट्री डिस्टर्ब होगी तो ये मार्जिन अपने बढ़ाएंगे, है ना। सेल्स ग्रोथ की बात करूं ना तो टाटा स्टील से ज्यादा माल कोई बेचता है नहीं। ये देखिए इनका सेल्स कितना है, देखना ध्यान से, थोड़ा समझ में आएगा आपके। 50,000 करोड़। जेएसडब्ल्यू स्टील का सेल कितना है? और टाटा स्टील ग्लोबल लेवल पे काम करती है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। ये है 1,68,000 करोड़। टाटा स्टील देखिए कितना है। टाटा स्टील सेल है 2,18,000 करोड़, है ना। सबसे ज्यादा माल बेचती है ये। और ये, अब ये इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये है 132 करोड़। अगर हम लोग ग्लोबल लेवल की बात करें, क्योंकि हर जगह है ना, टाटा स्टील लंदन में भी है, हर जगह है, तो वहां की अगर हम लोग टोटल बात करें तो ये बढ़ जाता है, 1 लाख करोड़ और बढ़ जाता है। तो टाटा स्टील मुझे बेहतर लगता है इस भाव में, जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखती है टाटा स्टील में, ठीक है। आते हैं आइशर मोटर। आइशर मोटर भी ये भाव में अच्छा लगता है कि ओवरऑल आइशर मोटर ने आउट परफॉर्म किया है। 2 लाख करोड़ की कंपनी, अभी इसका ना एवरेज पी देखना, इसका एवरेज पी ना 68 के नजदीक रहा है यहाँ पे। ये 40 चल रहा है, अभी थोड़ा नीचे है 38। नहीं तो इसका एवरेज पी अगर मैं देखूं तो हमेशा ये प्रीमियम पे रहा है, हमेशा 5 साल का अगर एवरेज में निकालू तो। ये देखिए यहाँ पे 71 है। 71 से मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, मैं 73 से लेके हर साल
यहाँ पे 50 रहा है, तो यहाँ पे 31 रहा है, तो एवरेज इसका अभी 5 साल के एवरेज पी के नजदीक चल रहा है। और अच्छी चीज ये है, कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, रिटर्न्स को बढ़ाया है और आउट परफॉर्म किया है पूरे इंडस्ट्री को। ये देखो, पूरे इंडस्ट्री को। अब यहां से मुझे लगता है कि 20% और बढ़ना चाहिए इसको। ये देखो कैसे रिटर्न्स है, 12% एक वीक के अंदर, 4%। अब मैं देखो तो मैं तो 20% कह रहा हूं, मगर यहाँ पे तो सिर्फ 2 वीक में 20% बढ़ गया था। तो बेहतर परफॉर्म करेगा आइशर मोटर, ऐसा चार्ट्स को देख के लगता है और उसके फंडामेंटल्स को ही देख के लगता है। फंडामेंटल्स देखें कंपनी का, देखो 5 साल से सीएजीआर ग्रोथ क्या है, 21% की है। डेब्ट फ्री है कंपनी में, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे 9 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो 18,000 करोड़ का सेल है, 25% का मार्जिन है। नेट टू प्रॉफिट कर रहा है 4,700 करोड़, 5,300 करोड़ ये नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है। इक्विटी 27 करोड़ की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% का है, बहुत अच्छा है। पहले तो 17-18% का डबल हो गया। तो यहाँ पे नहीं जाएंगे हम लोग रॉयल एनफील्ड कितना बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग 49%। और पब्लिक में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, मगर ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी मुझे बढ़िया लगती है अगर मैं कंपेयर किसी भी के साथ भी करूँ तो। उसके बाद 3 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। अब एसबीआईएन हमेशा से हम लोग बाइंग में है, अच्छा लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कि हाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और कर भी रहा है और किया भी है। ऑलमोस्ट जो मुझे लग रहा था 1 साल में टारगेट अचीव करेगा, उसने 2 महीने में कंप्लीट कर दिया। अब इस भाव में मैं इंडस्ट्री पी की बात करूं तो जो इंडस्ट्री का पी है वो है 8 का, ये मिल रहा है 13 पे। मतलब मोस्ट ऑफ, ऐसा होता नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ डिस्काउंट पे होता है, पर बिकॉज ऑफ जो इनिशियल ग्रोथ दिखाया है। आप ये देखना, जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है, 86,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। 86 बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आजू बाजू कोई भी नहीं है। एचडीएफसी बैंक 13 लाख करोड़ की कंपनी है, 13 लाख करोड़ नेट प्रॉफिट क्या रिपोर्ट कर रही है, नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है 77,000 करोड़। तो ये कोई भी बैंक है ना, आपको पता है क्रॉस सेलिंग बेचता है, बाकी प्रोडक्ट बेचते हैं, मालूम है आप लोगों को? आशीष जी, म्यूचुअल फंड करता है, यस सर। क्रेडिट क्लेम करता है ना। मोस्ट ऑफ ना वो अदर प्रोडक्ट से ही अपने आप को प्रॉफिटेबल रखता है। मोस्ट ऑफ, ये देखो रेवेन्यू और इंटरेस्ट में तो नेगेटिव ही है ना। अदर इनकम इसको प्रॉफिटेबल रखी है, 1.5 लाख करोड़ का अदर इनकम। देख रहे हैं आप? हम्म। अदर इनकम सर वो कौन सा सर इसमें? अदर इनकम म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस बेच रहे हैं, अच्छा, है ना। सिर्फ इंश्योरेंस, ओके। हाँ नहीं, और भी है ना, और एन नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स हैं। हम्म। बाद वो में यूपीआई प्रॉपर्टी, वाला। प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस बेच रहे हैं, है ना। हाँ। ये सब जो चीजें हैं ये बैंक्स को प्रॉफिटेबल रखती है, इसीलिए वो बैंक्स को कंपलसरी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं कस्टमर को बेचना है ना। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम है उनका, कस्टमर एक बार एक्वायर करना है, फिर बार बार रिपीट करना है, उनको प्रोडक्ट बेचते रहना है, बेचते रहना है। हाँ। क्रेडिट कार्ड बेचते हैं उनको, क्रेडिट कार्ड से जो इंटरेस्ट आता हाँ। है ना, ये सब अदर हाँ। प्रोडक्ट आ जाता है। अच्छा। चलिए आगे आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं यहाँ के इसकी पीई की बात करूं तो ये है 15, इसका चल रहा है 17। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13 पे है, मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन पे है अभी भी। बाकी तो सब टारगेट अचीव कर दिया, मगर मैं पेग रेशियो कहूं तो ये भी अभी 1 के नीचे है ना, कि ग्रोथ इसकी क्या रहेगी। तो अभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगती है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा लगता है मुझे इस भाव में। मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ जो मैं 1 साल के लिए देख रहा हूँ। अब टेक्निकल चार्ट्स में अगर मैं बात करूं तो ये मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा परफॉर्म करेगा। टारगेट इसका 460 तक है। कब तक? ये
नवंबर 2027 तक लगता है कि ये टारगेट अचीव करेगा, तो यहां से 55% है ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी। स्टॉप लॉस है ये प्रॉपरली। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। ये देखो, इंडस्ट्री पी है 8 का, पीएसयू का ये है 7.85 पे। 17 लाख करोड़ डिपॉजिट है इसके अंदर, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। मार्केट शेयर 6% का है इसका। एसबीआई के पास 22% का मार्केट शेयर है लोन बुक में, डिपॉजिट बुक में, कि अगर 100 रुपया लोन होता है, 100 रुपया डिपॉजिट होता है, तो एसबीआई में 22 रुपया होता है। इतना बड़ा बुक है उसका। 51 करोड़ लोग कस्टमर है आज एसबीआई के। ग्रोथ रेट देखो, बैंक बड़ौदा के 18 करोड़ कस्टमर है ना। 15 कंट्री में और भी काम करती है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो पी बुक वैल्यू से कम है, बुक वैल्यू 1 रुपए की है, ये 93 पैसे पे अवेलेबल है। इसीलिए मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है ना। बुक वैल्यूशन प्रॉफिटेबल कंपनी बुक वैल्यू के नीचे कहां मिलती जल्दी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आईसीआईसी बैंक 17 का पी है, 19 लाख। अब ये देखो, बुक वैल्यू कहाँ है इसकी, इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू, कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बुक वैल्यू है कितनी, 484। कितने पे अवेलेबल है, 1300 रुपए, है ना। बुक वैल्यू के हम्म ऊपर है ना, हम्म ये बुक वैल्यू पे मिल रहा है, अच्छी चीज है। अच्छा लगता है कि हाँ ऊपर जाएगा। उसका मुझे लगता है कि कैनरा बैंक हम लोगों ने बहुत पहले से फोकस किया है, और कैनरा बैंक अच्छा कर भी रहा है। तो कैनरा बैंक भी अच्छा करेगा, ये देख के अभी भी लगता है कि कैनरा बैंक का जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। ग्रोथ हम लोग को कैनरा बैंक में देखने मिलेगी। प्राइस 209 रुपया, अभी 145 चल रहा है, तो मतलब 42% का रिटर्न दे सकता है आने वाले 1 साल में कैनरा बैंक भी। और कैनरा बैंक भी ओवरऑल परफॉर्म अच्छा कर रहा है। इसका पी देखो 6.5 का है, इंडस्ट्री पी 8 का है, बुक वैल्यू 129 की है, बुक वैल्यू के थोड़ा सा ऊपर है। तो बुक वैल्यू का मतलब सर? अगर एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देंगे तो कितना है उसकी वैल्यू, सब सब बेच देंगे ना तो कितना रुपए बचेगा, सब बेच देंगे तो 129 रुपीज में इसकी एक्चुअल वैल्यू 129 रुपीज है। शेयर की वैल्यू इतनी है, 129 रुपीज। एक्चुअल वैल्यू इसकी 129 है। एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देंगे ना, तो जितना एसेट है लाइबिलिटी सबको कम कर देंगे तो 129 रुपए इसकी वैल्यू है। हम्म और अभी मार्केट में चल रहा है 146 रुपीज। अच्छा। तो उसमें गुडविल है, ये सब है, सब कुछ इन्वॉल्व है ना, इसमें प्रीमियम है, क्योंकि बिजनेस रनिंग बिजनेस है ना, लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग हम्म बिजनेस है ना। यस सर। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हमेशा प्रीमियम मांगता है, तो ये प्रीमियम है। हम्म तो ये ऐसा है, तो ये टोटल 5 कंपनी बेहतर लगती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। आइशर हम लोगों ने देखा, उन्होंने देखा। दूसरा क्या था, टाटा स्टील। टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। हम्म ठीक है, ओके। तो ये सर 5। डिफेंस स्टॉक। डिफेंस स्टॉक में बेल अच्छा लग रहा है, बीएल। हम्म डिफेंस में ना बहुत सारी कंपनी, आईडीएफसी बैंक भी ठीक है, पर अभी मुझे चार्ट में उतना बेहतर नहीं लग रहा है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा कल्पेश जी। मैं डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इनिशियली ठीक चल रहे हैं, सब बड़े हुए हैं ना, देख रहे हैं। हम्म सबका अच्छा चल रहा है सर डिफेंस स्टॉक में। अच्छा नहीं चल रहा, उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी डिमांड क्रिएट होगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, ये सब हम्म एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कर रहे हैं। देखो ये सब नहीं खरीदना चाहिए, ये भी नहीं खरीदना चाहिए फिलहाल। सर और ऑलरेडी गवर्नमेंट यूनियन बजट में तो किया हुआ ना, कि अभी डिफेंस स्टॉक में थोड़ा पैसा डालेंगे। देखिए मेन क्या पता है कि गवर्नमेंट ने इस बजट में ना डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया था। 5 लाख
85,000 करोड़ का कुछ बजट था, उसमें उसको 6 लाख करोड़ कर दिया, मतलब 4% से बढ़ाया था। इसके हाँ पहले अगर तो ग्रोथ देखे ना तो कम से कम 8% 12% से एग्रेसिवली बढ़ा रहा था बैंक भारत सरकार। इस हाँ। बार इतना तेजी से नहीं बढ़ाया हम्म। डिफेंस पे, ओके। मतलब इंफ्रा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये एक बजट में हम लोग को देखने मिला। हम्म। सर इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन से स्टॉक्स होते हैं वो जो ये विंडमिल डालते हैं सुजलॉन एनर्जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होते नहीं, हैं इंफ्रा कि मतलब ना जो रोड पे काम कर रहे हैं, जो पोर्ट पे काम कर रहे हैं, जो इंफ्रा अच्छा अच्छा। मतलब रोड और रेलवेज। अभी गवर्नमेंट अगर 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, तो रोड और रेलवे के अंदर 53% का इन्वेस्टमेंट है उनका। ओके। बाकी जो है उस पे 50% का इन्वेस्टमेंट वहां पे है, बाकी सोलार पे, डेटा सेंटर पे, ये सब है ना, ये सब इंफ्रा में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक बार डालना इंफ्रा क्या हम्म। होता है वो समझ में आएगा। ओके सर। इंफ्रा के स्टॉक्स में रेलवे आ गया, रोडवेज आ गया, पोर्ट आ गया, हम्म। ये सब इंफ्रा में आ जाता है। और गवर्नमेंट ज्यादा करके जो फोकस है 53-54% वो रेलवे, रोडवेज, पोर्ट, ये सब पे है। हाँ। सर तो एयरवेज किसमें है? वो भी इंफ्रा में है, वो भी एयरपोर्ट। है ना? हाँ, हाँ। इंफ्रा में है वो। अभी एक बात समझना, आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ही क्यों बिल्ड करती है एयरपोर्ट? नो आइडिया। हैवी इन्वेस्टमेंट और उसका पे बैक पीरियड भी बहुत लंबा है। बिल्ड करेगी और लीज पे दे देगी, क्योंकि भैया गवर्नमेंट ही कर सकती है। इतने सारे अप्रूवल, इतने सारे, अगर कोई कंपनी करने जाएगा होगा ही नहीं उनसे, अटके रहेंगे कहीं ना कहीं। गवर्नमेंट को ही रहता है कि इस यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा तो इस पर्टिकुलर एरिया का डिमांड बढ़ जाएगा, तो वो पहले डेवलप करेंगे और फिर कंपनी को दे देंगे कि हाँ अभी आप इसको, संभालो। हाँ आप रन करो और हम लोग को उसका रेवेन्यू दे दो, रेवेन्यू शेयरिंग कर लो। कितना अच्छा। फुटफॉल होगा पूरे साल में? सबसे ज्यादा अगर बिजिएस्ट एयरपोर्ट देखे इंडिया का, तो वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली का। 5 करोड़ लोग वहां पे इनिशियली पूरे साल में हम्म। आते जाते हैं पूरी दुनिया से। हम्म। वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट, जिसमें न्यूयॉर्क आता है, दुबई आता है, लंदन ओ। आता है ना, हम्म। कि कहाँ पे सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अभी दुनिया एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है यूपी में, ओ। नोएडा में। अब उसके पीछे स्ट्रेटेजिक, देखिए मेन क्या है पता है क्या, जितने भी मालवाहक, जितने भी प्लेन्स जाते हैं ना, उनको अगर वो, जान दो अलग हो जाएगा टॉपिक, बढ़ जाएगा। तो उनको बीच में ना कहीं स्टॉप नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है कि जहां से इंडिया का रेवेन्यू बढ़े, वहां पे आएंगे, वहां पे उनका सर्विसेज देखेंगे, ऑयल रिफिल करेंगे, थोड़ा सा उनको प्रॉपरली उनकी प्लेन्स का हालत देखेंगे और फिर वापस उनको अलाउ करेंगे, तो उनको एक स्टॉपेज मिल जाएगा, इसीलिए वहां पे बिल्ड कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ वो कार्गो एयरपोर्ट होगा, क्योंकि इन बिटवीन है ना, प्रॉपरली बीचों बीच है वो, हम्म। ऐसा है। चलो, कुछ आप ना जितने भी चीजें आती है ना पढ़ते रहना, थोड़ा समझ में आता रहेगा क्या क्या चीजें चल रही है। हर्ष, ये जो सवाल है ये अपना वहां का सवाल है, कम्युनिटी लेक्चर चल रहा सर ये है ना। जीएमआर एयरपोर्ट। वहां पे सवाल पूछना, लिख के रखना हर्ष, वहां पे पूछना, हम लोग बात करेंगे। जीएमआर, जीएमआर में एक टाइम पे मैंने बहुत इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पे कहीं ₹35 पे, ठीक है ना, ये मार्क करके रखा है, बहुत इनिशियल स्टेज में। अब ये देखो, ये ब्रेकआउट होगा ना तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट रहेगा इसके लिए, ठीक है ना? जी है मेरा। लगता है कि इसके लिए बड़ा ब्रेकआउट रहेगा, देखते हैं क्या करेगा।
कितना टारगेट देगा सर? हाँ टाइम है इसमें। हम- देखो हम लोग ने ना अब ये कम्युनिटी लेक्चर ना और भी लोगों के लिए खोला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है राहुल भाई, कीर्तन जी, आशीष जी, कि आपके कोई फ्रेंड है, गौतम जी, कोई रिलेटिव है जिनको वीकली बेसिस पे आके वो नॉलेज ले सके कि हाँ मार्केट कैसा रहेगा क्या रहेगा और अपने सवाल पूछ सके, तो आप ये लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वो भी कम्युनिटी लेक्चर में आएंगे। वो हमारी कम्युनिटी का रेगुलर पार्ट नहीं रहेंगे, जो हम लोग कम्युनिटी में कुछ डिस्कशन चलता रहता है, मगर वो वीकली बेसिस पे आके नॉलेज ले सकते हैं, है ना, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई शेयर्स उनके पास पड़ा तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो थोड़ा सा उनको ही बेनिफिट होगा आपके वजह से कि वो कहीं ऐसे प्रोफेशनल सर्विस ले सके। और नाउ वी आर रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस, है ना, तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस देगा ये। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि ये लिंक आप कम्युनिटी का शेयर करना उनके साथ, उनसे बात करना कि यस ये हर वीक में 10 से 11 होता है संडे को। तो हम लोग पूरा अभी ये बेनिफिट उनको भी सीखने मिलता कि क्यों हम लोग कह रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कहता हमेशा कि ये शेयर्स बाय करना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है, बिहाइंड दैट, कि मतलब रीजन क्या है कि ये क्यों बाय करना चाहिए, तो हम लोगों ने डिस्कस किया रीजन भी, है ना। चलो, कुछ क्वेश्चन है किसी का? आज कुछ कोई स्पेशल करने वाला है घर पे? यस, कोई स्पेशल नहीं। मैंने वीडियो देखा था कि हाँ संडे को एक आदमी बहुत स्पेशल कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है कि वो कुछ करे, वो मस्त नहाता है, सब कुछ करता है, भगवान का पूजा वूजा करता है, शर्ट पैंट पहनता है और सो जाता उसमें है। नया नहीं है ना। तो ये संडे को मोस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है संडे का, तो ऐसा कोई करने वाला है आज? चलिए, कुछ क्वेश्चन है किसी का? हम्म कोई क्वेश्चन किसी का? सर रेलवेज पे अपना बात रह गया था। हाँ राहुल भाई, उन्होंने बात भी की थी, रेलवे की हालत खराब लग रही है। बट ये लोग अभी मर्जर्स पे जा रहे हैं। हम्म, रेल विकास की हम लोग बात कर रहे थे सुबह, रेल विकास की हालत खराब है। जुपिटर वैगन की हालत खराब है। सर इरकॉन और आरवीएनएल को मर्ज करने के प्लान में। किसके? इरकॉन, आई आर अच्छा, सी ओ एन, और आरवीएनएल। ओके। ओहो, क्या बाउंस है, क्या बात है, एक ही दिन में जुपिटर वैगन 247 से सस्टेन होगा क्या है? क्या लगता है? हम्म नहीं नहीं सर। ना। नहीं। दूसरा कोई कंपनी, रेलवे का उन्होंने बना के रखा है यहाँ पे, रेलवे स्टॉक्स, रेलवे 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 नहीं बनाया क्या रेलवे? बीच में भाग रहे थे, ओके। सर हाँ, हमें ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। फ्री में अवेलेबल दिला रहा हूँ, क्यों लेना है, मेरी आदत हो गई है। मैं कम से कम, मुझे 2018 से यूज करता हूँ मैं, तो ये हाँ। 8 9 साल हो गए, और पढ़ाना रहता है मुझे, तो ये सब मैंने बनाए हुए हैं, तो थोड़ा इजी रहता हम्म है ना। क्यों 50,000 भरना है साल का? वही बात सही है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो 50,000 का। हम्म अब फुल टाइम ट्रेडिंग करने आ रहा हो कि अब सर यही करना है, सब बंद, हाँ। तब भी नहीं लेना, अच्छा, तब भी नहीं लेना है। तब भी अवेलेबल है ना। हाँ। ऐसा है। दूसरा कोई, हाँ कौन सा बोल रहे हैं राहुल भाई? आरवीएनएल, रेल विकास निगम। यही तो देख रहे थे हम लोग सुबह, इसकी हालत हम्म खराब थी, इसकी हालत खराब थी, देख रहे हैं, इसकी हालत खराब है। वही और नीचे जाने का। 2022 में शेयर प्राइस थी 30 रुपया, बढ़ के हो गई 600 रुपया, 20 टाइम बढ़ गई, 1 लाख को 20 लाख कर दिया, है ना, 10 लाख को 2 करोड़ रुपया कर दिया, और अभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, 50% नीचे आ गया टॉप से। चलो, अच्छा नहीं लग रहा राहुल भाई। और बाकी दूसरा कौन था बोले आप? आईआरटीसी।
आई यार, सीटीसी, TTC। सदाबहार, सदाबहार भी नीचे है। आईआरसीटीसी का जो रेवेन्यू है ना, वो इम्पैक्टेड होगा, ये है ऐसा। इसीलिए देख रहे हैं हालत क्या है इसकी। आप 600 से 652 से 552, 100 रुपया गिर गया, और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। बचना नहीं लेना, गिरता हुआ चाकू है, पकड़ने जाएंगे चोट लगेगी। चलिए दूसरा कौन सा बोल रहे हैं, इसलिए कौन सा है अपना, याद नहीं आ रहा मुझे। वीडियो कवर किए थे हम लोग, जुपिटर वैगन है, और एक जो मेट्रो बनाती है, टीटागढ़। टीटागढ़। क्या बात है राहुल भाई, धन्यवाद। वेलकम। हालत खराब है इसकी भी। मुझे टीटागढ़ ना पर्सनली अच्छा लगता है, कंपनी का जो वर्किंग है ना। पर ये भी फिलहाल नहीं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना अभी, गड़बड़ लग रहा है अभी। तो इसमें कोई कोरियन कंपनी आ रही है जेवी के अच्छा, लिए। नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी अच्छा नहीं है। रेलवे से बचना, नहीं डालना रेलवे में पैसा। सर म्यूचुअल फंड करना चाहिए क्यों? लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, एज क्या है आपकी कीर्तन जी? हाँ, एज क्या है? 23। नहीं करना चाहिए। क्यों सर? अरे एज है ना अभी आपकी, कमाने की, रिस्क लेने की। अच्छा। तो क्यों जाके सेफ एसेट में जाना, वो रिटर्न ही देगा आपको 12%, 10%। कोई जरूरत नहीं है। अब कमाओ ना साल का 22%, 24% आने वाले 20 साल तक। एक बार 50 पार कर जाओगे तो जाना थोड़ा सेफ एसेट के लिए। अच्छा, डायरेक्टली सर आप एक बार, हो, तो 50 के सर बाद में जाएंगे तो मतलब भी नहीं है ना। आप खुद ही नहीं लोगे। जब आपका वेल्थ ही होगा 10 करोड़ का, क्या जरूरत है जाने का वहां? हाँ वही तो सर। हाँ, बोलना कृष्णा। सर एक बार ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स चेक कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं, कृष्णा को नाम बताया उसमें ही खुशी है मुझे। हम्म, क्या करना चाहिए किसमें कृष्णा, अच्छा नहीं लग रहा अभी भी? ना नहीं, अभी रिसेंटली रिसेंटली क्रैश हुआ है ना, 2 प्लेन क्रैश हुए हैं, 2 लोगों की हाँ मौत हुई, तो इसलिए अभी नीचे है। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जानकारी रखना कि क्या चीजें चल रही है, रिलेट करना चार्ट के साथ उसको। तो ये सर ऑरित है, 1 मिनट, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। ऑरित हाँ, मैंने पढ़ा था अभी तो। नहीं, इसमें नहीं। तेजस क्रैश हुई, मोस्ट ऑफ है ना। मुझे बहुत सी चीजें न्यूज पता नहीं चलती, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता। कौन कौन टीवी देखता है यहाँ पे? कौन कौन है? सर सभी लोग देखते हैं सर। सभी लोग नहीं है। मैं नहीं देखता। टीवी में यूट्यूब पे सब ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह ऐसे। हाँ, नहीं देखते ना, टीवी है, जो उनको दिखाना है वो दिखाएंगे, यूट्यूब है जो मुझे देखना है वो दिखाएगा। हम्म। तो ऐसा, तो मुझे जो देखना है मैं वो देखूंगा। नहीं 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 देखता हूँ अब मैं। कोई ऐसा मत बोल देना मेरा टीवी नहीं है इसलिए नहीं देखता, टीवी रहता तो मैं देखता। सर टीवी है लेकिन देखता कोई नहीं है। हाँ, ये यही बात सच है। यूट्यूब है ना सर। हाँ, यूट्यूब है ना। सभी टीवी में यूट्यूब आ जाता है फिर। नहीं। स्क्रीन टाइमिंग किसका 2 घंटे के ऊपर है? स्क्रीन टाइम। मेरा। मेरा हाँ, मेरा सर। मेरा और भी। तो यूट्यूब के लिए आपका पैटर्न एनालाइज करके आपको वही न्यूज़ देते रहता है। हाँ, वो कुछ आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता उसमें। नितिन बोल रहा है क्लास एक ही घंटे का है। तो हम लोग ने सब स्टॉक डिस्कस कर लिए हैं, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले रहे हैं। नितिन, हम लोग ने आइशर मोटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और टाटा स्टील, ये 5 स्टॉक डिस्कस किए।
अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक्स में है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया। अभी शाम को इसका वीडियो आएगा, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, तो एक बार आप लोग देखना ओके यूट्यूब, ठाकुर कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। ओके सर। कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे लेंगे, और आप लोग अपना स्क्रीन टाइम कम कर सके, पूरे 2 घंटे तक लेके आए, इसकी कोशिश करना। 2 घंटा इनफ होता है, फिर भी 2 घंटा, 24 घंटे में 2 घंटा आपने मोबाइल को दिया है, 2 घंटे का तो लेक्चर ही हो जाता है सर। वो स्क्रीन टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ धनंजय। मतलब या दूसरे सब चीज करना उसमें। हाँ, इंस्टाग्राम का देखना, अपना यूट्यूब देखना, फिर बाद में अपना व्हाट्सअप देखना। व्हाट्सअप पे बार बार तो लोग चेक करते रहते हैं बिना कोई मैसेज आए हुए, वैसे कम है। है ना। तो व्हाट्सएप पे खाली शॉर्टकट बना के रख दिया है अभी, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है उसका। बाकी सब बात हाँ, करते रहेंगे। मेरे तो व्हाट्सअप के सब नोटिफिकेशन बंद है, वो तो सब। बंद। एक एक भी मुझे व्हाट्सएप का टी नहीं आता है। वो जब मुझे खाली मोबाइल देखना, मैं देखूंगा कि मैसेज कब आया हुआ है सर, कोई। जो काम का है खाली वैसा उसको वॉइस है, नहीं तो सब म्यूट पे है, सब सब ग्रुप म्यूट पे है। हाँ, फिर उसके सब ग्रुप म्यूट पर, कोई उनको काम नहीं है ग्रुप वालों को। खाली गुड मॉर्निंग गुड नाइट आते रहता है। हाँ, मेरा कह रहा हूँ कि सब सब मेरा सिर्फ नोटिफिकेशन सिर्फ एक ही चालू है। कौन सा चालू है? मैंने मेल बंद रखा है, सब रखा है, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। तो आप एक बात करना, अपना स्क्रीन टाइम कम रखना। आप कुछ काम कर रहे हो, टी आप जाओगे मोबाइल के पास, मोबाइल आपने हाथ में लिया हो, कम से कम आपका 10 मिनट ले लेगा। ठीक है, स्क्रीन टाइम कम करना, 2 घंटे तक लेके आना उसको पूरे दिन में। कृष्णा, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ठीक है। हाँ हाँ चलो, कुछ क्वेश्चन है किसी सर, का? यस। एक बार यूनिलीवर देख सकते हो? यूनिलीवर नहीं करेगा कुछ उतना अच्छा। उतना चलता भी नहीं उतना। हाँ, कुछ नहीं करेगा, है ही नहीं उसमें, कुछ भी नहीं है। व्यू ऊपर गया। 200 पॉइंट ऊपर जाता है, वापस उधर आके बैठ जाता हाँ, मुझे हो गया अभी, खत्म हो गया कहानी उसका, हिंदुस्तान लीवर का। है। अभी क्वालिटी वॉल्स भी उससे सेपरेट हुआ है ना उसमें। हाँ, ये हालत देखो कैसी है। हम्म। कैसी हालत है, ये सब सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। देख रहे हैं कैसी सेलिंग हम्म। अपॉर्चुनिटी हम्म। है। चलिए, कुछ क्वेश्चन है किसी का और? हाँ नहीं सर। राहुल भाई, प्रकाश जी, वंशी सर, कोई क्वेश्चन, कोई स्टॉक डिस्कस करना है? कल्पेश जी, आशीष जी। GRSC। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? हाँ हाँ, आपको मिलेगा, जिसने पूछा उसको। गार्डन रिसर्च अच्छा है, मैंने कहा ना, हम लोगों ने देखा था अभी नितिन, डिफेंस में, यही है ना। हाँ हाँ यही है। हाँ, अभी तो देखा था, बोला अच्छा है गार्डन रिसर्च। गार्डन रिसर्च को हम लोगों ने कवर भी तो किया था नितिन, वीडियो कवर किया था। हाँ अच्छा है गार्डन रिसर्च, चार्ट में भी अच्छा लग रहा है, चार्ट भी अच्छा लग रहा है, एक बार शेयर करेंगे। और कोई? अगर अभी, अभी एक हफ्ता हो गया है, अभी आपको क्या लगता है अभी आईटी में कुछ करना चाहिए आईटी अभी में, भी? आईटी में कुछ नहीं करना चाहिए, आईटी में सिर्फ आराम करना चाहिए। कल पर अभी आईटी तो इतना ग्रो हुआ है अभी। एआई इम्पैक्ट समिट भी हुआ था तो कितने सारे डील्स भी हुए थे। हाँ, चार्ट पे कुछ नहीं दिख रहा है ना कृष्णा, होने तेरा डील। और सर हाँ, एक कंपनी है जो अभी अभी खुला है, 8 मिनट। यस, और सर कोई? ये कल्पेश, सिगिलिटी इंडिया ये भी अच्छा नीचे आ गया। अच्छा कौन सा? सिगिलिटी ऐसे SA? GI। सिक्योरिटी लिमिटेड, ये हाँ सर एक बड़ा। एक बार आप फॉक्सकॉन देख सकते हो। हाँ, एक बड़ा, पहले इसकी हालत देखते हैं क्या है। ओ, प्राइस था 54 रुपीज, आ गया 39 रुपीज।
क्या करती कंपनी है? ₹18 करोड़ की कंपनी है, वो बड़ी कंपनी है। ओके, कंपनी सर्व ओनली यूएस कस्टमर होल्डिंग 1.23% द यूएस हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग मार्केट। अच्छा, अभी यूएस वॉर में चला गया तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। मेन बात ये है, देखो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है लास्ट क्वार्टर में 16% से। बाप रे बाप, बचना इससे, नहीं जाना इसमें कुछ भी करने। ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं थर्टी हाँ, फोर का इन्वेस्टमेंट है। नहीं जाना। बाप रे, 67 से 50 रन कर दिया स्टेक। उसका उनका बेचने का सेलिंग प्रेशर भी मार्केट में नीचे लेके आया है। मतलब प्रमोटर ने हाँ अपने हाँ, स्टॉक्स को बेचा है। नीचे है। प्रमोटर ने बेचा है, नीचे आया है। चलो ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे कृष्णा आप, कौन सी कंपनी? हॉटस्टोन। वो तो अच्छी है ना, उन्होंने जो इसमें इंफ्रा में काम करती है ना, फॉस्कॉन। स्पेल करना। FOXCONN। FOH। H फॉर फॉक्सकॉन। सर सेमीकंडक्टर्स और चिप मेकिंग में है वो। फॉक्स फॉक्स सर, फॉक्स। सर FOXCONN। FXCO। हाँ, आई आई सब पहला वाला है शायद से। नहीं, फॉक्स पहला तो नहीं है, इंडिया आएगा ना यहाँ पे। इंडिया का स्टॉक्स। हम्म, ये नीचे नहीं आया ना। सिर्फ। तब भाई कंपनी है, मैंने अभी देखा। हाँ है ना, मैं क्या बोला कर रहा हूँ। तो सर इसमें क्यों नहीं आ रहा है? आएगा ना। स्पेल करना वापस। FOXCONN में था मैं बैठ। हाँ, FOXCONN मैं ग्रुप में डालता हूँ एक मिनट। एक मिनट रुकना। FOX, यही है ना, यही है। चेंज हुआ है क्या नाम इसका? नहीं। नहीं, इंडिया का नहीं है ना, ये बाहर का है। FOX। अच्छा, और सर और एक है, हम्म। HCL करते हैं। क्या है? HCL। हाँ, हाँ। ये आईटी है। बच रहा ना इससे, आईटी से। अच्छा ठीक है। आईटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और सर एक बार ये देख सकते हो, TSAT, स्पेल करना। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। नहीं है ना, वो लिस्टेड नहीं है ना। अच्छा, लिस्ट भी है। चलो, और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई सर क्वेश्चन? मेटल। मेटल ना राहुल भाई अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसा देख के लगता है, मगर मैं ज्यादा बुलिश टाटा स्टील पे ही हूँ सिर्फ। क्योंकि जो कॉस्ट है ना वो बढ़ेगी मेटल की, मगर मेटल का डिमांड भी रहेगा वॉर के बाद, है ना। ह्यूज अपॉर्चुनिटी रहेगी। वापस बिल्ड करेंगे तब, है ना, वापस बिल्ड करेंगे, सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, इंफ्रा की जितनी भी चीजें सब लगेंगी। समझा। और ये सिल्वर भागे ऐसा लग रहा है। सिल्वर पे ना व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं गोल्ड पे बुलिश हूं, गोल्ड पे दिक्कत नहीं है। सिल्वर पे थोड़ा सा न्यूट्रल हूं, क्या करेगा क्या नहीं, चीजें गड़बड़ है सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर पे कोई व्यू नहीं है मेरा फिलहाल। मतलब व्यू नहीं है, मतलब मैं कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं रहूंगा सिल्वर के, ना मैंने बाई किया ना सेल किया, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बाहर हूँ, ओके। मैं गेम से बाहर हूँ। समझा। आप लोग भी बचना राहुल भाई, सिल्वर में श्योर। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट से। ओके। ठीक है ना, ईटीएफ लेना ना, कुछ कोई दिमाग नहीं लगाना, सिल्वर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं मैं। ठीक पक्का है पक्का। आशीष जी, गौतम जी, सिल्वर में
कोई डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि सिल्वर डाउन ट्रेंडिंग रहेगा, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर पे व्यू बेटर होगा तो एक बार पोस्ट करेंगे ग्रुप में, मगर फिलहाल तो सिल्वर से बचना चाहिए। नागेश जी कोई क्वेश्चन? हर्ष, कम्युनिटी लेक्चर का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। विपिन जी, प्रकाश जी, बढ़िया एंजॉय कीजिए संडे सब लोग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अवेलेबल टाइम दिया। ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।